हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो +1 का है, लिमिट्स का। क्या करना लिमिट्स में? प्रूव दैट साइन थीटा लेस देन टेन थीटा, एंड वी हैव टू प्रूव दिस इनइक्वालिटी फॉर द थीटा विच इज लाइंग बिटवीन 0 and π/2, एंड द अदर वन इज दिस limit theta tends to 0 sin theta is upon theta is equal to 1. We are going to prove this in this formula in this video. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइड ओ ए ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक सेक्टर को ड्रॉ करेंगे। वो सेक्टर कैसे, जो मतलब जिसकी जो रेडियस है वो ओ ए होगी और सेंटर क्या होगा, ए। सो ये होगा सेक्टर। और यहाँ पे कंसिडर कर लो कि यहाँ पे बी है। ये हो गया ओ ए एंड ओ बी रेडियस, एंड दिस वन टेक एज थीटा। दिस इज द सेंट्रल एंगल थीटा। नाउ एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर, एंड व्हाट्स आर, ओ ए स्क्वेयर। Theta over 360, and 360 we can write here 2 pi into OA square. Cancel it out. What we get? 1/2 into OA या AO square into theta. Take it as number 1. This is the area of the sector OAB. Now let us join AB with a straight line AB. Now what we get? Area of triangle OAB. Area of triangle OAB is equal to 1/2 into OA into OB into sin theta. This is the area of the triangle. Area of the triangle क्या लेते हैं हम? 1/2, two sides और sine of the angle between these two sides. Now we know very well OA is equal to OB because these are the radiuses of a sector. So that's why we can write it as OA square and sin theta, take it as number 2. Now let us draw a perpendicular on the side OA, and what is it? Consider this is the perpendicular, and produce this line OB so that this line meets the perpendicular at point C, and we get OAC, a triangle, another triangle. Now area of this OAC, as it is a perpendicular, so that's why it is a right angle triangle. Now its area is equal to 1/2 into AC into OA. Now AC, take it as number 3. AC can be written as AC upon OA is equal to tan theta. In triangle OAC, perpendicular over base is equal to tan theta. Now AC can be written as OA into tan theta. Put in 3. What we have? Area of triangle OAC is equal to 1/2 into AC, OA tan theta, its value into OA. 1/2 into OA square and tan theta, take it as number 4. Now let us look at the figure. What is it? Area of, we can clearly say that, मतलब स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी means, look at here, this is the triangle, and obviously its area is less than by this is the sector, and now area of these two is less than the area of the triangle OAC. Area of triangle OAC. So from 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, what we have? Area of triangle OAB 1/2
इंटू ओ ए स्केयर इंटू साइन थीटा लेस देन फ्रॉम 1/2 इंटू ए ओ स्केयर इंटू थीटा एंड लेस देन 1/2 इंटू ओ ए स्केयर एंड tan थीटा. Now 1/2 OA square, 1/2 AO square, 1/2 AO square, this is the common, and cut it out. What we left with? Sin theta less than theta less than tan theta, and this is our required inequality first. The sin theta less than tan theta for which angle? That angle is 0 less than theta less than pi/2. मतलब 0 और pi/2 के बीच का में हमारा एंगल. So that's why we get this. Now for second result, what is it? Limit theta tends to 0, sin theta upon theta is equal to 1. Here we will use squeeze principle. Squeeze principle. What is it? If fx is less than gx less than hx. Squeeze principle को हम सैंडविच प्रिंसिपल भी बोलते हैं. एंड व्हाट इज इट? अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन है जी एक्स का और जी एक्स लेस देन है एच एक्स का, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ऐसे. अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 एच एक्स इज इक्वल टू एल, देन बाय दिस रिजल्ट लिमिट x tends to 0 gx will also again equal to l. मतलब अगर fx की लिमिट भी l है, hx की भी l है, तो रिजल्ट क्या है कि जो इसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बिटवीन, उसकी भी लिमिट l ही होगी. अब देखो कैसे, ये हमने जो प्रिंसिपल प्रूव किया, इनइक्वालिटी प्रूव किया, साइन थीटा लेस देन tan थीटा. नाउ डिवाइड इट बाय साइन थीटा, डिवाइडिंग इट बाय साइन थीटा, व्हाट वी गेट? Sin theta upon sin theta less than theta upon sin theta less than tan theta upon sin theta. Cancel it out. 1 less than theta upon sin theta less than, what's tan theta? Tan theta is equal to sin theta upon cos theta, and what we have? Tan theta upon sin theta and is equal to 1 upon cos theta. Sin theta यहाँ पे आ जाएगा 1 upon cos theta, so we can write here 1 upon cos theta. Now अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, मतलब उल्टा दें, तो ये 1 का 1 ही रह जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा. ठीक है. नाउ वी रीच्ड एट दिस रिजल्ट, यहाँ पर तक पहुँच गए हम. अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास. अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू थीटा प्लस 0 प्लस सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ले कोस थीटा, तो ये हमारे पास 1 आएगा. ये मैंने एक और वीडियो बना के रखी हुई है, वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से. अगर थीटा अगर टेंड करेगा 0 को, लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे हो जाता है, इसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है पीछे, वो आप देख लेना. और दूसरा क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस 1, ये तो ऑब्वियसली 1 के इक्वल आएगा. नाउ तो फ्रॉम 1 बाई यूजिंग स्क्यूज प्रिंसिपल व्हाट वी गेट? स्क्यूज प्रिंसिपल मैंने आपको पीछे बता दिया. ये भी 1 को टेंड कर रहा है, ये भी 1 को टेंड कर रहा है, और इसके जो बिटवीन लाई कर रहा है साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी भी लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगी. 0 प्लस क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमारा जो थीटा है वो 0 लेस देन थीटा लेस देन pi/2 के बीच का है, मतलब इसमें है, तो थीटा क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव. नाउ अब हम कंसीडर करते हैं थीटा टेंस टू 0 माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा. अब देखो क्या करेंगे, पुट कर लो थीटा को इज इक्वल टू 0 माइनस है ना, तो थीटा को चेंज कर लो आप माइनस थीटा में, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा टेंस टू माइनस थीटा टेंस टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन माइनस थीटा. तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट माइनस थीटा टेंस टू 0, ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा. इसमें भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं, आपको पता चल जाए कैसे होता है. लिमिट माइनस थीटा टेंस टू 0, ये आएगा साइन थीटा अपॉन थीटा. अब ये देखो माइनस थीटा टेंड कहाँ कर रहा है? 0 को. 0 क्या प्लस में ही, अब तो ये किसके इक्वल हो गया? 1 के. तो इस रिजल्ट से और इस रिजल्ट से हम क्या इन्फ्लुएंस ड्राइव करते हैं कि साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल टू किसके होती है? 1 की. अब कंसिडर करते हैं नेक्स्ट लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा.
What's tan theta? We know it's sin theta upon cos theta. So limit theta tends to 0, tan theta is sin theta upon cos theta, और ये थीटा साथ में रहेगा इसके, तो इसको लिखेंगे लिमिट tan theta tends to 0 sin थीटा अपॉन थीटा, और इसको सेपरेट करके यहाँ पे लिख दो cos थीटा, तो ये क्या होगा 1 अपॉन cos थीटा, ये cos 0, 1 इंटू 1 अपॉन 1, ये भी 1 के इक्वल। इट मीन्स हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, एक आ गया लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा आ गया लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स to solve the questions regarding limits. Thank you.